Hello and Assalamu alaikum. This is Nida Asif and I'm Nati Urdu trainer at CECA. I hope you guys are well and enjoyed your holidays. Now let's come back to reality of the Nati Urdu test, and I wish you all the best for your preparation, and I hope you guys are all taking all the benefits from these free classes which are provided by CECA. And not only these services are provided at CECA, there are so many other services which you can avail free of cost, which includes free student visa extension if your visas are expiring, so you can come at CECA. There are free services for you for the extension of the visas, cheapest professional year options, cheapest health covers for overseas students and also for the visitors, and free TR 485 visa application, free PTE and IELTS classes if you are tutor of NATI classes, and free NATI classes in 4 languages, which includes Hindi, Nepali, Punjabi, and of course Urdu if you are tutor of PTE and IELTS classes. And if you're thinking about Canadian immigration, you can come at CECA and you can assess your profile free of cost. You can also get cheapest college admissions and free migration consultation. So these are the services which are provided at CECA free of cost. So please come at, and or you can contact through email or phone and you will get your replies for your queries immediately. All right, students. So now come back to the dialogues again. First of all, I'm going to explain you the structure and pattern of the NATI test for the students who are listening to me or who came into the class for the first time and who does not anything about the NATI test, what it is. So I'm going to explain the structure or pattern for the test. All right. So this is simple test with 2 dialogues. Okay, and this is not the translation test, it's interpretation test. इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि ट्रांसलेशन आपकी वर्ड टू वर्ड होती है कि जो आपने सुना उसको एग्जैक्टली उन्हीं वर्ड्स में आपने उसका तर्जुमा कर देना है, जिसको कहते हैं ट्रांसलेशन। जबकि इंटरप्रिटेशन होती है कि आपने जो सुना, आपको जो समझ आया, आपने उसको एक्सप्लेन कर देना है, आपने मीनिंग कन्वे कर देना है। इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक जो आपने वर्ड सुना है उसी ही की ट्रांसलेशन होनी चाहिए। Okay, so this is interpretation test, it's no translation test. So PTE CCL, इसमें 2 डायलॉग्स होते हैं, अराउंड 300 to 350 वर्ड्स ईच। बहुत ज्यादा कोई लेंथी नहीं होता, इसमें लेंथी सेगमेंट्स हो सकते हैं बट द टाइम ड्यूरेशन फॉर ईच डायलॉग इज ऑलमोस्ट सेम। ओके, सो ये सो 2 डायलॉग्स हैं और दोनों के मार्क्स हैं 65 ईच, जिसमें पासिंग मार्क्स हैं 29 ईच। 29 आउट ऑफ 65 इज द पासिंग मार्क्स। अगर आपके दोनों डायलॉग्स में 29 ईच आ जाते हैं, सो स्टिल यू आर नॉट एबल टू पास द टेस्ट बिकॉज ओवरऑल पासिंग मार्क्स आर 63। सो 63 आउट ऑफ 90 शुड बी द ओवरऑल मार्क्स। आपके किसी एक में 29 और दूसरे में अगर 35 आ जाते हैं ओवरऑल इट्स 63, तो यू कैन पास द टेस्ट। लेकिन अगर आपके एक में 25 है और दूसरे में 35 है, ओवरऑल यू गॉट 63 बट स्टिल एक में आपके 29 से कम है, यू आर नॉट एबल टू पास द टेस्ट एंड इट्स फेल्ड। सो ऑलवेज keep your target to achieve the marks around 33 each dialogue so that आपको overall आराम से 63 हो जाए। ओके, सो इस डायलॉग की मार्किंग सिस्टम इस डिडक्टिव मार्किंग सिस्टम होता है। डिडक्टिव मार्किंग सिस्टम मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जिसमें 4 एसेंशियल क्राइटेरियाज होते हैं, 4 एसेंशियल। इसके बाद माइनर मिस्टेक्स भी कंसिडर होती हैं, जिसकी लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन जो मेजर मिस्टेक्स हैं जिसमें आपके 5-6 मार्क्स एकदम से कट जाते हैं, दैट आर द 4 क्राइटेरियाज, जिसमें फर्स्ट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ऑब्वियसली इट्स जो आपने सुना उसी का ही करेक्ट मीनिंग कन्वे करना, इज करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपने करेक्ट इंफॉर्मेशन कन्वे की है, दिस इज एक्यूरेसी। ऑब्वियसली दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया फॉर मार्किंग सिस्टम।
डिडक्टिव मार्किंग सिस्टम में पहले आपको बता दूं, इसमें ये होता है कि आपके जब डायलॉग अभी स्टार्ट किया है सुनने से पहले आप यू हैव अचीव 45 मार्क्स। अब वो आपका डायलॉग सुनते साथ जो जो आपकी मिस्टेक्स होंगी उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स कटते जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड डिडक्टिव मार्किंग सिस्टम। ठीक है, मतलब एक सेगमेंट सुना, उसमें आपको एक मिस्टेक उनको कोई लगी, सो दे विल -2, देन -2 अगेन इफ दे आर फाइंडिंग एनी मिस्टेक्स। ओके, सो इसमें हर सेगमेंट की करेक्टनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपका अगर एक सेगमेंट है वो अगर आपका पूरा करेक्ट है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, सो दैट इज आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज स्ट्रेस ऑन दिस थिंग कि अगर आपका कोई छोटे वाले सेगमेंट्स हैं उनका आपको 100% श्योर होना चाहिए कि वो आपने बिल्कुल करेक्ट किए हैं। लेंथी सेगमेंट्स के लिए अगर आपकी कोई एक आधी मिस्टेक हो जाती है, सो सिर्फ वहीं पे मार्क्स कटें, लेकिन जहाँ पे पॉसिबल है कि आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, यू मेक इट वेरी श्योर कि वो आप करेक्टली उसको करें। कि छोटे सेगमेंट्स का इंटरप्रिटेशन करना इज नॉट वेरी हार्ड, इज नॉट अ बिग डील, यू कैन पास इट वेरी इजीली। ओके, सो फर्स्ट वन इज द एक्यूरेसी, करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन आपने सुनी है उसी ही को आपने कन्वे कर देना है इन अदर लैंग्वेज। Then the second one is distortion. It's obviously opposite of accuracy. Distortion means कि आपने mispresent किया है information को। Information अगर आपने उसने left बोला है इंग्लिश में और आपने उर्दू में उसको दायां बोल दिया है, so this is the mispresentation of information, और ये मेजर मिस्टेक होती है। और इसका बहुत, इस तरह की चीज़ों का बहुत कीनली ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लीगल और इलीगल इस तरह की चीज़ें अक्सर मिक्स हो जाती हैं। और क्योंकि जो इंग्लिश के जो सेगमेंट्स होंगे वो इंग्लिश एक्सेंट में ही होंगे, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप वो एक्सेंट क्लियरली सुनते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या वर्ड्स बोले गए हैं। All right, so the first criteria is accuracy, second criteria is distortion, and the third criteria is addition. Addition mean के segment में उन्होंने 3 बातों में अगर एक बात complete की है और आपने interpretation करते हुए कोई चौथी बात भी अपने पास से add कर दी है जिसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, मतलब sometimes होता है we need to add words जिसके लिए हमें अपना meaning को comprehend कर दें कि हमारा अच्छे से meaning convey हो जाए, we can add words, but we don't need to add full sentences, or this is called addition. So we don't need to add full sentences to convey our meaning कि अच्छे से हम अपना meaning convey कर दें। All right. एंड द फोर्थ क्राइटेरिया इज ओमिशन, जो कि मोस्ट कॉमनली यही मिस्टेक होती है कि बहुत लेंथी सेगमेंट्स में अक्सर स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं इंफॉर्मेशन को एंड दे डोंट कंसिडर इट कि अच्छा चलो ये नहीं भी बोलेंगे तो इसके बगैर भी गुजारा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ओमिशन। आप इंफॉर्मेशन मिस कर देते हैं। अगर उन्होंने 4 बातों में एक सेगमेंट कंप्लीट किया है तो यू हैव टू बी इन 4 सेंटेंसेस। आपको उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी मीनिंग कन्वे करना है। अपने आप कुछ वर्ड्स का हो सकता है कि आप उसका मतलब उसको कंसीडर किए बगैर अपना पूरा मीनिंग कन्वे कर दें, बट इट डजंट कि आपकी एक लाइन मिस हो गई है तो यू शुडंट कंसीडर इट इम्पोर्टेंट और आप अपना उसको दूसरी लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर दें। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ओमिशन। इसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन खुद ही नाटी वालों ने दिया हुआ है कि आप रिपीट ले सकते हैं। रिपीट मीन कि अगर आपका कोई इंफॉर्मेशन मिस हो गई है, यू कैन आस्क योर इन्विजिलेटर आई वांट टू लिसन दिस सेगमेंट अगेन, और वो आपके लिए वो सेगमेंट दोबारा प्ले कर देते हैं, विच मीन्स कि आपकी जो इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है यू कैन कंप्लीट योर नोट्स जब आप दोबारा सुनते हैं। ठीक है, सो अब इंफॉर्मेशन अब नोट्स टेकिंग टेक्निक्स भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कि आपने किस तरह नोट्स लेने हैं, इंफॉर्मेशन मिस हो गई है तो कैसे उसको ऐड करना है। एंड ये जो रिपीट वाला ऑप्शन है ये दोनों डायलॉग्स में एक एक दफा आप ले सकते हैं विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। बट लेकिन अगर आप सेकेंड टाइम भी रिपीट लेना चाह रहे हैं या थर्ड टाइम भी लेना चाह रहे हैं तो यू कैन टेक, कोई आपको नहीं रोकेगा, बट उसके लिए आपका -1 हो जाएगा। एंड आई एम सो हैप्पी विद इट। -1 इज मच बेटर देन कि आप कोई मेजर मिस्टेक करें। इफ यू फील कि जहां आपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस की है यू शुड गो फॉर द रिपीट। 2 रिपीट ले लें, 3 ले लें, बट अपनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट रखें और अपना टेस्ट ओवरऑल इसका अच्छा जाना चाहिए। ओके,
सो एज आई मैंशन कि एक एक दफ़ा आप फ्री ऑफ नेगेटिव मार्किंग आप अपना रिपीट ले सकते हैं, लेकिन अगर इसके बाद भी आपको ज़रूरत महसूस होती है और यू कैन गो फॉर इट, इसका -1 होगा, ठीक है। ओके, so this is all about the pattern of the test. I hope I have mentioned everything. Okay, नोट्स टेकिंग टेक्निक के बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि नाटी के नोट्स लेते वक्त आप अपने नोटबुक में अकॉर्डिंग टू द लाइंस, मतलब अगर एक सेगमेंट में उसने 4 बातें की हैं तो वो 4 ही लाइनों में आनी चाहिए। उसके नोट्स आपको 4 लाइंस में ही कवर करने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह की आपके पास नोटबुक होती है जैसे पेजेस। तो अगर आपके उन्होंने 4 पॉइंट्स एक ही सेगमेंट में बोले हैं तो पहली बात को एक लाइन में, दूसरी को दूसरी में, तीसरी को तीसरी में, चौथी को चौथी में लिखें। और अगर फॉर एग्जांपल आपने सेकंड वाली बात आपको समझ नहीं आई, जस्ट लीव दैट स्पेस और नेक्स्ट आप लिखना शुरू करें। कभी भी सुनते वक्त आपने स्टॉप नहीं करना टिल द एंड। अगर आपको आखिरी लाइन की समझ आई है, बीच वाला छोड़ें और एंड वाली लाइन लिख लें, ठीक है। सो दैट व्हेन यू विल टेक द रिपीट, तो आपको सिर्फ उसी पे फोकस करना है जो इन्फॉर्मेशन आपने मिस की है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि आपकी लास्ट वाली उसके बाद उसने क्या बात की, वो ऑलरेडी आपकी रिटर्न होगी। कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी कि आपने रिकॉर्डिंग का अगर कोई भी वर्ड कहीं अंदर कुछ आपको समझ नहीं आया, आप वहीं पे नोट स्टॉप कर दें। कभी भी ये मिस्टेक मत करिएगा। अपना जहां जो नहीं समझ आया वो स्पेस छोड़ें, नेक्स्ट नोट्स लेते रहें। जो जो बात समझ आती है, अगर एक वर्ड की भी समझ आती है तो वो वर्ड भी लिख लें, ठीक है। सो ये है नोट्स टेकिंग टेक्निक्स, और ये तभी ये प्रैक्टिस के साथ ही होती हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आपके फिंगर टिप्स पे होगी। ऑलराइट, सो the last thing in here is to mention the topics। किन टॉपिक से रिलेटेड डायलॉग्स आते हैं, इन्हीं से रिलेटेड ही आते हैं। कोई एक्स्ट्रा कोई बहुत जिसकी पाकिस्तान की इकोनॉमी या इससे रिलेटेड कोई डायलॉग्स नहीं आते। ये जो मेंशन होते हैं, जो हमारे यहाँ पे डेली के जो इश्यूज होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तानी और इनके रहन सहन, उनसे रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उन्हीं से रिलेटेड डायलॉग्स आते हैं। And it includes business, education, employment, financial, health, housing, immigration, legal issues, social services, and insurance. Yes, so these are the topics जिनसे related dialogues आते हैं, and we have to be prepared for those things. Okay, so I hope you have understood all about the pattern of the test. Now let's start a dialogue. आज हम एक dialogue करेंगे and then we will do some vocabulary जो कि उससे related भी होगी, dialogue से भी, और general vocabulary as well. All right, guys, so let's start our dialogues now. But before starting the dialogue, I want to go through all the services free of cost providing at CECA. If your visas are expiring, you can come at CECA and you can get the visa extensions free of cost, cheapest professional year options, cheapest health covers for overseas students and also the visitors, free TR 485 application, free PTE and IELTS if you are tutor of NATI classes, and free NATI classes in 4 languages: Hindi, Punjabi, Nepali, and Urdu if you are tutor of PTE and IELTS classes. And if you are thinking about the Canadian immigration, of course, you can come at CECA and you can assess your profile free of cost for cheapest college admissions and courses, and free migration consultation for any kind of immigration issue. You can call, you can email, or you can visit physically there in our offices, and your queries will be solved or replied immediately. So these are the services which are so many free of cost are providing at CECA. I hope you will take advantage of these services. And now come back to the dialogue. For NATI CCL Urdu, आज हम एक dialogue करेंगे
related to health topic. Okay, so I'm going to play it. I will take the notes. I will let you know कौन से keywords मैंने लिखे हैं जिससे हम अपना टाइम सेव करके क्विक और comprehensive notes ले सकते हैं. ठीक है, I'll go everything with you. I hope अगर आप भी साथ मेरे क्लास ले रहे हैं तो आप भी notes लें और try to answer after pausing the video. आप मेरे आंसर से पहले अपना आंसर देखें and then compare it, and I hope it will help you a lot. Alright, so let's start. Good morning, Mr. Aftab. I remember you came to see me last week complaining about pain in your right knee. Is your condition getting better? So, क्या नोट्स हैं इसमें? गुड मॉर्निंग, ऑलवेज राइट जीएम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट. इनका जरूर हमें इंटरप्रेट ट्रांसलेट करना होता है, जैसे सुबह बखैर, दोपहर बखैर, शाम बखैर और शब बखैर. एंड नेम इज आल्सो इम्पोर्टेंट, मिस्टर आफ्ताब. और इसके अलावा रिमेंबर, केम लास्ट वीक, कंडीशन गेटिंग बेटर. और इसमें एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, कंप्लेनिंग अबाउट योर राइट नी. ओके, सो ये एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है. अगर ये मिस, जैसे मैंने नोट्स लेते हुए ये मिस कर दी, बट इट इज इन माई माइंड कि वो कंप्लेन कर रहा है किसी चीज के बारे में, मैंने लिखा नहीं है, बट यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि ये की इंफॉर्मेशन है. यू कैन जस्ट राइट द लेफ्ट लेग, राइट लेग और राइट नी, क्योंकि लेग इज डिफरेंट एंड नी इज डिफरेंट. ठीक है, तो उसको दाएं घुटने में दर्द हो रहा है. सो वी हैव टू मेंशन दैट. लेट्स लिसन इट अगेन. Good morning, Mr. Aftab. I remember you came to see me last week complaining about pain in your right knee. Is your condition getting better? Okay, so is your condition getting better? तो इसका अब मैं पहले इसको इंटरप्रेट करूंगी एज अ सैंपल आंसर. सुबह बखैर मिस्टर आफ्ताब, मुझे याद है कि आप पिछले हफ्ते अपने दाएं घुटने में दर्द की शिकायत लेकर मेरे पास आए थे. क्या आपकी हालत में बेहतरी आई है या क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? ठीक है, सो वट एवर द मीनिंग यू वॉन्ट, यू कैन जस्ट मीनिंग कन्वे कर दे. डोंट नीड टू बी वेरी एग्जैक्ट, उसका मीनिंग नहीं बोलना, मतलब ट्रांसलेशन नहीं करनी. सो फर्स्ट नोट्स कैसे लेने हैं? गुड मॉर्निंग मिस्टर आफ्ताब इज इम्पोर्टेंट, नेम इम्पोर्टेंट है. Remember, came last week, right knee, and is your condition getting better? You can write any word from it कि ये sentence आपके mind में रहे कि इसको कैसे interpret करना. ठीक है, so सुबह बखैर मिस्टर आफ्ताब, मुझे याद है आप पिछले हफ्ते अपने दाएं घुटने में दर्द की शिकायत लेकर मेरे पास आए थे. क्या आपकी हालत में बेहतरी आई है? नो, नाउ यहाँ पे अगर आप राइट नी को लेफ्ट नी या लेफ्ट लेग बोल देंगे, सो दैट इज द मेजर मिस्टेक. ठीक है, देखने में या सुनने में लगेगा कि मैंने नहीं इतनी कोई मेजर मिस्टेक की, दायां बायां बोल दिया या घुटने को टांग बोल दी. इट्स नॉट अ मेजर मिस्टेक, बट इट इज, यू हैव टू बी थिंक, क्योंकि ओवरऑल टेस्ट इजी है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, लेकिन वो उन्होंने सिर्फ ये कीवर्ड्स को ही फोकस करना है कि अगर आप डॉक्टर को जाके बोलेंगे कि मेरे दाएं घुटने की बजाय अगर आप बाएं बोल देंगे, इंटरप्रेटर, पेशेंट कह रहा है कि मेरा दाएं घुटने में दर्द है और इंटरप्रेटर बोल रहा है कि इसके लेफ्ट घुटने में दर्द है, तो इट इज, वो उसके दाएं घुटने का ऑपरेशन कर देगा. सो दिस इज वेरी सीरियस. सो इस तरह की चीजों का आपने ख्याल रखना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन किस वे में इंपॉर्टेंट है और किसको क्यों उसको हमने ज्यादा फोकस करना है, किस तरह के पॉइंट्स को. ठीक है, ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट. ये एक सेगमेंट होता है, ठीक है, जो भी हमने एक सुना सेंटेंस जो कि एक इंग्लिश स्पीकर ने बोला है, वो इसको एक सेगमेंट बोलते हैं. ठीक है, एक सेगमेंट में उसने 3 बातें बोली हैं. गुड मॉर्निंग मिस्टर आफ्ताब, आई रिमेंबर यू केम टू सी मी लास्ट वीक कंप्लेनिंग अबाउट योर लेफ्ट राइट नी, and is your condition getting better? These are 3 sentences और इसको एक सेगमेंट बोलते हैं. ठीक है, एक स्पीकर, एक लैंग्वेज का स्पीकर जो भी बात करेगा वो एक सेगमेंट होगा. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि अब
दूसरी अदर लैंग्वेज जो कि उर्दू है उसमें होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि दर्द तो आहिस्ता आहिस्ता पहले से बदतर होता जा रहा है। अब तो दर्द के मारे मैं रात को सुकून से सो भी नहीं पाता। पिछली बार आपने मुझे सारी रिपोर्ट्स लाने को कहा था। ओके यहाँ पे हमें कोई बीप सुनाई नहीं दे रही, बट एवरी सेगमेंट उसके बाद आपको एक बीप सुनाई देगी जो कि अराउंड 5-6 सेकंड्स लॉन्ग होगी। ठीक है, उस बीप में आपके पास टाइम होता है कि आप अपने नोट्स कवर कर लें, और उसमें के बाद भी 3-4 सेकंड्स लेके आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। दर्द आहिस्ता आहिस्ता बदतर हो रहा है, दर्द के मारे सुकून से सो भी नहीं पाता, पिछली बार सारी रिपोर्ट्स लाने को कहा था। तो आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, कोई भी मैंने इसमें बात मिस नहीं की। ठीक है, सो ये नोट्स लिए हैं मैंने 4 लाइंस में, 4 बातें मुझे पता है उसने की हैं और मैंने इन्हीं को ही इंटरप्रेट कर देना है। ठीक है, मुझे कुछ सोचने की, एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं उन्हीं चीजों को, उन्हीं पॉइंट्स को बस इंटरप्रेट कर दूंगी। सो लेट मी डू इट फॉर यू एज अ सैम्पल आंसर। ये क्या है? No, not at all. Instead, the pain has been steadily getting worse. Now I can't even sleep comfortably at night due to the pain. Last time you asked me to get all the reports, or you asked me to bring all the reports. ठीक है, so ये है इसका आंसर। और you can say as no, not at all. The pain is getting worse, and even I'm not able to sleep peacefully at night. Last time you asked me to bring all the reports. ठीक है, so be केयरफुल। आपने कोई इसका इंटेंस वो नहीं होना कि ये जो वर्ड बोला है इसी का ही एग्जैक्ट ट्रांसलेशन क्या है। यू हैव टू बी इन दैट वे कि आपने मीनिंग कन्वे करना है और वो उसी ही बात की करेक्टनेस हो, करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है। ठीक है, अब अगर आप इस तरह की इसको कर देते हैं, इंटरप्रेट कर देते हैं इन दिस वे जो कि मैंने बोला, अब इन्विजिलेटर के पास इसमें कोई मार्जिन नहीं है कि आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग करे। ठीक है, सो अगर उसने आपके 2 सेगमेंट सुन लिए हैं और उसमें कोई भी मेजर क्या माइनर मिस्टेक भी नहीं है, सो उसको कोई फोर्सफुली नहीं करे, वो कोई बाउंड नहीं है कि उसने लाजमी ही आपकी नेगेटिव मार्किंग करनी है कि अगर इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। ठीक है, सो अगर आपका कोई भी सेगमेंट बिल्कुल ठीक जाता है विदाउट इवन मेजर माइनर मिस्टेक्स, विदाउट एनी वोकेबलरी मिस्टेक, तो वो आपके फुल मार्क्स ही रहेंगे तब तक। ठीक है, लेकिन अगर जैसे जैसे आपकी कोई ना कोई मिस्टेक होती जाएगी, कोई माइनर मिस्टेक, कोई वोकेबलरी मिस्टेक, तो वो तब -1, 2, 3 व्हाटएवर उसी के अकॉर्डिंग होता जाएगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग दैट कि अगर आप कोई भी सेगमेंट कर रहे हैं, कोई छोटा सेगमेंट है या ये एवरेज इस तरह के सेगमेंट्स हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर कि आप उसको बिल्कुल विदाउट एनी मिस्टेक करें, ताकि कोई अगर आपकी मेजर मिस्टेक कहीं पे हो जाती है तो इसको ओवरकम कर दें, आपका बैलेंस रहे और आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए कि आप अपने मार्क्स को मेजर लूज कर दें इस तरह से। ऑलराइट, सो गाइस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। That's correct. And I asked you to bring the report for all the tests you've had in the last 3 months. Have you brought them today? Have you brought them today? ठीक है, so इसके बाद एक बीप है, so I can complete my notes. Notes मैंने क्या लिए? Correct. Asked you to buy reports for all tests in last 3 months. Have you brought them today? I'm not sure, मैं सिर्फ वर्ड्स अंदर अंदर लिख रही हूँ, लेकिन जब मैं बोलती हूँ तो मैं पूरी मुझे लाइन ही जैसे वो माइंड में होती है मैं वो बोल देती हूँ। ठीक है, बट 4 लाइन्स में मैंने नोट्स लिए हैं। भी मैंने जैसे आपको बताया नोट्स टेकिंग टेक्निक्स में, अगर आप जो भी लाइन सुने उसको एक लाइन में ही रखें। ठीक है, एक सेंटेंस एक लाइन में हो, अगली बात अगली लाइन में, अगर सो दैट अगर आप इंफॉर्मेशन को मिस कर देते हैं तो वो लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ओके, सो करेक्ट, ask you to bring for all the tests
इन लास्ट 3 months, मतलब कि वो रिपोर्ट्स की बात कर रहा है कि 3 महीने में जो भी टेस्ट आपने लिए हैं उन सबकी रिपोर्ट्स लेके आनी है, और क्या आप वो लेकर आ गए हैं? तो क्या आंसर है इसका? बिल्कुल दुरुस्त। और मैंने आपको गुज़िश्ता 3 माह के सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स लाने को कहा था, क्या आप वो लेकर आए हैं? गुज़िश्ता और पिछले 3 माह की सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स लाने को कहा था। अब टेस्ट ही होता है, रिपोर्ट्स नताइज होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप रिपोर्ट्स भी यूज कर लेते हैं तो ये वोकैबुलरी मिस्टेक नहीं है। वोकैबुलरी मिस्टेक उसको कंसिडर किया जाता है कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा वर्ड है जो कि हमारे उर्दू स्पीकर को नहीं पता, ठीक है। हमारी उर्दू लैंग्वेज में बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं जो हम इंग्लिश के ही यूज कर रहे होते हैं। अभी भी मैं जब इंग्लिश बोल रही हूँ, यू कैन सी के कितने ज्यादा वर्ड्स हम इंग्लिश के यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि वो वर्ड जो आप समझें कि उर्दू स्पीकर को नहीं समझ आएंगे। अब स्कूल का मतलब होता है मदरसा। अगर आप स्कूल की बजाय मदरसा बोलेंगे तो हमारा, आपको पता है मदरसा का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है स्कूल से, तो बेटर है कि आप वर्ड स्कूल ही बोलें बजाय के मदरसा के, ठीक है। वो आपकी वोकैबुलरी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो वोकैबुलरी वहां पे ज्यादा मैटर करती है कि कोई ऐसा वर्ड है जो हमारी पाकिस्तानी जो उर्दू स्पीकर है उसको नहीं पता, तो वो आपका समझें कि वो वोकैबुलरी मिस्टेक कंसिडर होगी अगर आपने उसको ही इंग्लिश में बोल दिया है। ऑलराइट, ठीक है। अब हमारा उर्दू का ये फायदा है कि इसमें हमारे बहुत ज्यादा वर्ड्स इंग्लिश ही के ज्यादा कंसिडर होते हैं, ठीक है। तो हमने टेस्ट को टेस्ट ही बोल देना है और रिपोर्ट्स को रिपोर्ट्स ही, दैट्स फाइन, इसमें कोई भी मुज़ायका नहीं है। ओके, सो आई एम गोना रिपीट इट अगेन। बिल्कुल दुरुस्त। और मैंने आपको पिछले 3 माह के सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स लाने को कहा था, क्या आप वो लेकर आए हैं? नेक्स्ट सेगमेंट। ओके गाइस, इसी तरह का ही टेस्ट होगा। कुछ मतलब होते हैं टॉपिक्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, जैसे टूरिस्ट का हो गया, लेकिन वो भी मतलब इतना वो नहीं होता। कुछ लेंथी सेगमेंट्स अगर आ जाते हैं तब यू कैन कंसीडर के टेस्ट मुश्किल था, लेकिन लेंथी सेगमेंट्स के लिए वी हैव द ऑप्शन कि हम रिपीट ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें अगर कोई वोकैबुलरी मिस्टेक्स, वोकैबुलरी इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बहुत ज्यादा वर्ड्स को ही इंग्लिश का ही यूज करते जाएं तो देन दे माइट कैन कंसीडर के इसके मार्क्स कटने चाहिए। और टॉपिक वाइज वोकैबुलरी इज अवेलेबल। आप क्लास में आए, गिव मी योर ईमेल आईडीज, आई विल प्रोवाइड यू विद ऑल द वोकैबुलरी, टॉपिक वाइज भी और जनरल वोकैबुलरी भी, जो कि टेस्ट और ऑल द डायलॉग्स में यूज होती हैं। सो अदरवाइज ये इसी ही तरह के टेस्ट होगा इन द एग्जाम एज वेल। ओके, नाउ लेट्स लिसन द नेक्स्ट सेगमेंट। जी, मैं वो लेकर आया हूँ, लेकिन वो बिखरे हुए हैं। मैं हर रिपोर्ट को उनकी सही तरतीब से रखना भूल गया था, इसलिए वो बिखरे हुए हैं। जी, लेकर आया हूँ, बिखरे हुए हैं। हर रिपोर्ट को उनकी सही तरतीब से रखना भूल गया था, इसलिए वो बिखरे हुए हैं, ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी बातें तो हमें वैसे भी याद रहती हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हम नोट्स ना भी लें तो हम कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन, लेकिन यू हैव टू टेक नोट्स फॉर ईच सेगमेंट, जो छोटा भी है या जो बड़ा भी है, बिकॉज यू गाइस नेवर नो कि कौन सा सेगमेंट लेंथी हो और आप नोट्स ना लें और इट विल बी ऑल गॉन फ्रॉम योर माइंड। ये आप कभी भी मिस्टेक ना करिएगा कि हम अपने माइंड की मेमोरी को हम कंसिडर करते हैं, बहुत ज्यादा हम कॉन्फिडेंट हैं उसके लिए और हम नोट्स नहीं लेंगे, ठीक है। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक यू गाइस विल डू। तो हमेशा नोट्स लें, चाहे वो छोटा है सेगमेंट, चाहे बड़ा है, चाहे आप एक वर्ड का ही लें कि मुझे उस वर्ड से भी आप अपना मेमोराइज कर सकते हैं सेंटेंस, ठीक है। ओके, yes, I have, but they all are disordered. I forgot to keep each report in a right order and hence they are not in a correct order. So, उसने भी एक ही बात को 2-3 दफा बोल दिया, मैं लेकर आया हूँ लेकिन वो बिखरे हुए हैं, मैं उनको तरतीब से रखना भूल गया था इसलिए वो बिखरे हुए हैं, ठीक है। तो हमें भी वही चीज को हमें इंग्लिश में रिपीट कर देना है, दैट्स नॉट मैटर। ये बात नहीं है कि उसने हम एक ही वर्ड को अगेन एंड अगेन रिपीट करें, उसने भी तो उर्दू में वही वर्ड अगेन एंड अगेन रिपीट किया है, 2 दफा उसने एक ही बात की है, बिखरे हुए हैं।
सही तरतीब से रखना भूल गया था तो वो बिखरे हुए हैं, ठीक है। सो yes, I have brought them, but they are all disordered. I forgot to keep each report in a right order, and hence they are not in a correct order or they are scattered. ठीक है, so you can use any word for जिससे आपका बस मीनिंग कन्वे हो जाए. All right, okay. Let's move to the next segment. That's all right. I will sort them out for you. The latest report shows some inflammation and damage to your cartilage. Do you have other symptoms besides the pain? अब इसमें कुछ मुझे इन्फ्लेमेशन का वर्ड समझ आया है, बट आई हैव मिस्ड सम इंफॉर्मेशन. ठीक है, the notes which I have taken is that's all right, sort them out for you. और इन्फ्लेमेशन वो लाइन अब ठीक है, मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड कि उसने क्या बोला है, बट इन्फ्लेमेशन का वर्ड मुझे समझ आया एंड आई हैव रिटन दैट. उसके बाद मैं स्टॉप नहीं किया, आई हैव रिटन द नेक्स्ट लाइन जो उसने बोली थी, अदर सिम्टम्स बिसाइड्स द पेन. ठीक है, तो ये अब मुझे पता है कि अब मैंने रिपीट लेना है और मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन पे फोकस करना है. ठीक है, तो मैं अब दोबारा सुनूंगी और जो मैंने यू कैन सी कि मैंने वो स्पेस आई हैव लेफ्ट फॉर दैट इंफॉर्मेशन. तो मैं अब जब दोबारा इंफॉर्मेशन सुनूंगी, अब मैं ये फर्स्ट टाइम रिपीट ले रही हूँ, मीन्स के दिस इज फ्री ऑफ एनी नेगेटिव मार्किंग. मुझे कोई भी डर नहीं है, मैं कॉन्फिडेंटली आई वांट टू टेक रिपीट, मेरा ये राइट है. ओके, सो लेट्स लिसन इट अगेन. That's all right. I will sort them out for you. The latest report shows some inflammation and damage to your cartilage. Do you have other symptoms besides the pain? Damage to your cartilage. ठीक है, तो कौन सी इंफॉर्मेशन मैंने जस्ट फोकस की है? लेटेस्ट रिपोर्ट, इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज टू योर कार्टिलेज. ये इंफॉर्मेशन इसी पे मैंने फोकस करना था, यही मैंने फिर मिस की थी और यही मैंने उसी स्पेस में ऐड कर दी. तो अब मेरे सारे नोट्स इन अ राइट ऑर्डर हैं. ठीक है, मुझे पता है कि कौन सी लाइन को मैंने पहले किस तरह इंटरप्रेट करना है, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. मैंने अगर स्पेस ना छोड़ी होती तो मुझे इन द एंड वो नोट्स लेने पड़ते और इंटरप्रिटेशन करते हुए आई विल डेफिनेटली गेट कंफ्यूज्ड कि मैंने कौन सी लाइन को पहले बोलना है और कौन सी को बाद में, जिसमें मुझे पॉजेस लेने पड़ते हैं. ठीक है, और मैं पॉजेस लूंगी तो मेरी फ्लुएंसी इफेक्ट होगी. एंड आई फॉरगॉट टू मेंशन इन द पैटर्न ऑफ द टेस्ट कि फ्लुएंसी इस टेस्ट में ऐसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे पीटीई के टेस्ट में. सो फ्लुएंसी में आपकी कोई भी आपका वो नहीं होना चाहिए, कोई आपने अपने रेपिटेशन नहीं करना, एक ही वर्ड को अगेन एंड अगेन नहीं बोलना, पॉजेस नहीं लेने. इस तरह के पॉजेस के मैं सोच रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, व्हेन योर नोट्स इन राइट ऑर्डर, आपको कभी भी पॉजेस नहीं लेने पड़ेंगे और आप उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर देंगे. पॉजेस हमेशा तभी लेते हैं जब हम सोचने लगते हैं. ठीक है, तो फ्लुएंसी और आपकी वोकैबुलरी आपके फिंगर टिप्स पे इसी तरह होनी चाहिए कि जैसे ही वो इंग्लिश का वर्ड आए आप फौरन उसके आपके दिमाग में उर्दू का वर्ड वो आना चाहिए. उर्दू का वर्ड है तो इंग्लिश का वर्ड आना चाहिए. सो ये इंटरप्रिटेशन के लिए ये चीजें इसी तरह ही इंपॉर्टेंट है. फ्लुएंसी, करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, पॉजेस नहीं लेने हैं एज इन पीटीई. ठीक है, ओके. सो उसने बोला दैट्स ऑल राइट, आई विल सॉर्ट देम आउट फॉर यू. The latest report shows some inflammation and damage to your cartilage. Do you have any other symptoms besides the pain? ठीक है, कार्टिलेज जैसे बोन एक हड्डी होती है, कार्टिलेज भी हड्डी, नरम हड्डी को बोलते हैं. कार्टिलेज नरम हड्डी ही इसका मीनिंग होता है. ठीक है, और अगर वो मसल का वर्ड यूज करता है, क्योंकि समटाइम्स मसल्स, कार्टिलेज ये सारे हेल्थ के रिलेटेड वर्ड्स हैं जो कि उसी वोकैबुलरी में आपको मिल जाएंगे. मसल पट्टे होते हैं. ठीक है, मैं जस्ट आपको डिफरेंस बता रही हूँ. मसल्स पट्टे होते हैं, बोन हड्डी होती है और कार्टिलेज नरम हड्डी होती है. ठीक है, इन्फ्लेमेशन होता है सूजन, डैमेज होता है नुकसान हो गया. अब आपकी उस नरम हड्डी को या
नरम हड्डी में कुछ सूजन और नुकसान का वर्ड हम यहाँ पे हमारे उसमें इंटरप्रिटेशन में नहीं फिट बैठता, तो हम कैसे मीनिंग कन्वे कर सकते हैं इसका कि आपकी नरम हड्डी में कुछ सूजन और कुछ जख्म है या कुछ उसको नुकसान पहुंचा है या कुछ उसको जख्मी है, कुछ इस वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो ताकि आपका कोई इसमें वो ना बैठे कि नुकसान हड्डी को कैसे पहुंच गया, चले किसी भी वे में वो आप कर सकते हैं। ठीक है, वो भी गलत नहीं होगा, बट इंटरप्रिटेशन का मतलब ही यही है कि आपने किस तरह वर्ड्स को लेके चलना है कि उसका करेक्ट मीनिंग कन्वे हो। ठीक है, ओके, लेट मी ट्राई टू इंटरप्रेट इट। मैं इसको करती हूँ, देन यू कैन सी। ठीक है, मैं इनको आपके लिए सही तरतीब में लगा दूंगा। सबसे ताज़ा तरीन रिपोर्ट से मालूम होता है कि आपकी नरम हड्डी को कुछ सूजन और नुकसान पहुंचा है। क्या आपको दर्द के अलावा भी कोई और अलामात हैं? सिम्टम्स, अलामात। ठीक है, अलामात होती है बीमारियों की अलामात जो होती है, सिम्टम्स। जैसे कोविड के तो कई सिम्टम्स हमें बताए गए हैं कि ये हो सकते हैं, सो दिस इज द सिम्टम्स मीन्स अलामात। ऑलराइट, ओके। सो जैसे मैंने अब नुकसान को ही एडजस्ट कर दिया इस इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, अदरवाइज इट कुड बी एज लाइक। ठीक है, मैं इनको आपके लिए सही तरतीब में लगा दूंगा। सबसे ताज़ा तरीन रिपोर्ट से मालूम होता है कि आपकी नरम हड्डी में कुछ सूजन और कुछ जख्म है। क्या आपको दर्द के अलावा दीगर अलामात भी हैं? ऑलराइट, ठीक है। सो लेट्स listen to the next segment. Okay, I hope you guys are getting me and it's completely understood, but still अगर आपके पास कोई भी questions हो, you can come in the class, जो कि हमारी every Sunday 11 से 1 11 to 1 AM sorry 11 AM to 1 PM होती है उर्दू नाटी क्लास। every Sunday you can come in the class, you can join me, I can make practice for the test with you, I can assess you and मैं आपको practice material के साथ आपकी तैयारी करवा सकती हूँ। So yes, you can come and join me every Sunday 11 to 1। और ना कि सिर्फ ये, आपके पास नाटी की फ्री क्लासेस की सर्विसेज आपके पास हैं। यू कैन आल्सो गेट ऑल द सर्विसेज एट प्रोवाइडेड एट CECA, जो कि हैं फ्री स्टूडेंट वीजा एक्सटेंशन। अगर आपका स्टूडेंट वीजा एक्सपायर हो रहा है, यू कैन कम एट CECA और फ्री ऑफ कॉस्ट आपका वीजा एक्सटेंड हो सकता है। सेकेंडली, आपको चीपेस्ट प्रोफेशनल ईयर ऑप्शंस प्रोवाइड किए जा सकते हैं। हेल्थ कवर चीपेस्ट ऑप्शंस फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स एंड विजिटर्स। Not only this, आपको free PTE and NATI classes, free PTE and NATI classes for those if you are the tutor of NATI classes, or free PTE classes in 4 languages which includes Punjabi, Hindi, Nepali and Urdu. इसके अलावा you can also get cheapest और जो कि आपके PR pathway को lead कर सकते हैं, college options and course options। If you want to go to the Canada और आप Canadian immigration के लिए seriously consider कर रहे हैं, you can come at CECA, free of cost आपकी profile assess की जा सकती है and free consultation in regards to any query regarding immigration, regarding your migration to Canada, anywhere you can come at CECA। ये सारी services free of cost at CECA provide की जा रही हैं। So hopefully आप जरूर contact करेंगे, not only through email or phone, you can visit our offices as well। Okay, now come back to the Nati Urdu test and move to the next segment। That's all right. I will. Now this is done. This is the next। मेरे दाएं घुटने के इर्द गिर्द सख्ती और सूजन भी है, लेकिन अहम मसला नाकाबिले बर्दाश्त दर्द है। डॉक्टर, बराए मेहरबानी मुझे बताएं मैं किस बीमारी से तकलीफ देह हूँ। बराए मेहरबानी मुझे बताएं कि मैं किस बीमारी से हूँ, कि मुझे क्या बीमारी है। ठीक है, that's what he is asking। So the notes are दाएं घुटने के इर्द गिर्द सूजन, सख्ती और सूजन है। अहम मसला नाकाबिले बर्दाश्त दर्द,
और बराए मेहरबानी कि मैं किस बीमारी से हूँ। ओके, बराए मेहरबानी और शुक्रिया इस तरह के वर्ड्स को आपने अवॉइड नहीं करना, ठीक है। इनको जरूर आपने पॉइंट्स लेके इनको जरूर ही इसका प्लीज एंड थैंक यू बोलना। ओके, I have stiffness and swelling around my right knee, but the major problem is unbearable pain. Doctor, please tell me what's the disease I am suffering from, or what's the disease I have, which disease I have. ठीक है, so anything, in any way you can convey your meaning. बात उसने बस सिंपल यही पूछी है कि स्टिफनेस सख्ती होती है एंड सूजन इन्फ्लेमेशन एज ही मेंशन्ड, उसने खुद ही बोल दिया था, इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। लास्ट सेगमेंट में उसने खुद ही बोल दिया था इन्फ्लेमेशन का वर्ड, सो यू कैन यूज इट हियर एज वेल। तो I have stiffness and swelling around my right knee, but the major problem is unbearable pain. Doctor, please tell me which disease I have. Okay, so that's all. ये simple as it is ही है, कोई mistake, कोई इसमें vocabulary word मुश्किल है ही नहीं. So this is it. All right, so let's move to the next segment. After analysing your reports and making the diagnosis, I am sure that it's arthritis, which is inflammation of the joint, and unfortunately, it is a chronic disease. And unfortunately, it is a chronic disease. So ये beep होता है 5-6 seconds का, जिसमें आप लास्ट लाइन तो आई एम श्योर यू कैन राइट होल भी लिख सकते हैं। आपके पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतना ही आपके लिए बेटर है, उतना ही फ्लुएंसी से आपको उसको इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम 3 to 4 keywords for every sentence you have to written, अगर आप चाहते हैं कि आप फ्लुएंटली उसका आंसर दे सकें, ठीक है। आपकी इतनी स्पीड होनी चाहिए नोट्स टेकिंग की, एंड इट ओनली कम्स विद द प्रैक्टिस, डोंट टेक इट लाइटली। इसको कभी भी इस टेस्ट को वो फॉर ग्रांटेड मत लें जिस तरह मोस्टली स्टूडेंट्स ले लेते हैं, और आफ्टर टेस्ट दे से कि मेरा टेस्ट तो बहुत अच्छा हुआ था एंड आई एम नॉट श्योर कि ये मैं क्यों फेल हो गया, ठीक है। आप यू शुड ऑल्सो कंसिडर कि इसमें फेलियर रेशियोज भी काफी हैं, ठीक है। इस टेस्ट की अगर पास बहुत लोग हो जाते हैं आसानी से तो फेल भी होते हैं, एंड यू मस्ट कंसिडर कि वो क्या इश्यूज होते हैं कि इस तरह के आसान टेस्ट में भी लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो वो यही मिस्टेक्स होती हैं कि नोट्स प्रॉपरली नहीं लिए होते, छोटी छोटी मिस्टेक्स बनकर ही वो कोई मेजर मिस्टेक बनती है। तो ये आपकी 2 मेजर मिस्टेक्स हों तो समझें कि टेस्ट आपके हाथ से गया, क्योंकि मेजर और माइनर मिस्टेक्स मिला के आप कभी भी आपके मिनिमम जो मार्क्स हैं पासिंग मार्क्स वो नहीं बन पाते फिर, ठीक है। सो बी श्योर कि आपकी कोई भी मेजर मिस्टेक ना हो, ठीक है, माइनर भी मिनिमम हो, रेपिटेशन बहुत कम हो, सेल्फ करेक्टनेस भी बहुत कम हो। सेल्फ करेक्टनेस का ये है कि अगर आपने लगता है कि आपने कोई इंफॉर्मेशन मतलब कोई आपने सेगमेंट इंटरप्रेट करते हुए कुछ बहुत ज्यादा पॉजेस ले लिए हैं, या आपको लगता है कि मैं इससे बेटर कर सकता था, सो यू कैन से सॉरी आई रिपीट माई सेल्फ, और आप उसके बाद पूरा आंसर अपना दोबारा बोलते हैं फ्लुएंसी से, ठीक है। सॉरी से पहले का वो आपका सारा माइनस उसको कर देंगे, उसको नहीं लिसन करेंगे, और सॉरी के बाद वाला वो आपका लिसन करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सेल्फ करेक्शन भी आपने अगेन एंड अगेन नहीं करनी, कोई 1 or 2 टाइम्स यू कैन डू इट, ठीक है। अदरवाइज ये आपका ओवरऑल इमेज खराब कर सकती है टेस्ट का, ठीक है। So if you are very sure कि मैं इसे better answer दे सकता हूँ, so you can do sorry I correct myself and then you can start your answer again. So this is the option you have as well. Okay, so notes which I have taken for this segment is after analyzing your report and making diagnosis, it's arthritis. मैंने सिर्फ कुछ arthritis का I have just written ARIS, मतलब आपने शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स लिखना है, ठीक है। पूरे वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू टेक योर नोट्स कंप्लीटली, मतलब सारे नोट्स नहीं ले पाएंगे, ठीक है। ऑलवेज राइट द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स, डोंट वरी अबाउट द स्पेलिंग्स, ठीक है। कोई भी हमारे नोट्स नहीं चेक कर रहा, इसके अकॉर्डिंग कोई भी मार्क्स नहीं होंगे। ऑलराइट, सो डायग्नोसिस आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, and unfortunately it is a chronic disease. So these are the notes I have taken, और अब मैं इसकी interpretation करूंगी for you guys.
ओके, पहले मैं आपको मीनिंग बता दूं। एनालाइज होता है तज्जिया करना, ठीक है। जैसे एनालिस्ट तज्जिया निगार होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो एनालिसिस ही करते हैं, वो तज्जिया ही करते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है तज्जिया करना। अब देखिए इस तरह के वोकैबुलरी वर्ड्स आ सकते हैं। एनालिसिस करना, आफ्टर एनालाइजिंग, मैं आपकी रिपोर्ट्स का तज्जिया करने के बाद। एंड मेकिंग डायग्नोज, डायग्नोज होता है तशखीस करना, ठीक है। बीमारियों की हमेशा डायग्नोज होता है, ठीक है। तशखीस करना ये उर्दू का वर्ड है, इसका मीनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये वोकैबुलरी वर्ड है। इसका मीनिंग बोलना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो तशखीस करना इज डायग्नोज। आर्थराइटिस इज हड्डियों की बीमारी होती है जिसको उर्दू में गांठिया बोलते हैं, ठीक है। मैंने हेल्थ हमारे इश्यूज में हमने मैक्सिमम जितनी भी डिजीजेस हैं हमने कवर की हैं कि उसके क्या मीनिंग है, ठीक है। बट इसके अलावा इनके अलावा भी कोई भी डिजीज आ जाती है और जिसका आपको नहीं मीनिंग पता, सो यू कैन यूज दैट वर्ड जो कि इंग्लिश में ही बोला गया है, ठीक है। सो गांठिया इज अ कॉमन डिजीज जो कि हमें पता है इसका क्या मतलब होता है। गांठिया आपको नहीं पता तो यू हैव टू लर्न इट। और जो के इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, अब जॉइंट्स क्या होते हैं, जोड़, हड्डियों के जो जोड़ होते हैं उसको जॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं आप किस तरह वोकैबुलरी हमारी इंक्रीज हो रही है। जैसे मैंने पहले बताया, मसल पट्टे होते हैं, लेग और एल्बो एंड नीज, इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कार्टिलेज नरम हड्डी होती है, बोन हड्डी है सिंपल, एंड जॉइंट्स जोड़ है, ठीक है। सो इनका डिफरेंस आपको इनका सही एग्जैक्ट मीनिंग पता होने चाहिए। ये नहीं है कि आप आगे पीछे कर दें, पट्टों को आप जोड़ बोल दें, जोड़ों को पट्टे बोल दें, ठीक है। ये फिर गलत होगा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली होता है बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से, एंड अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से। क्रॉनिक होता है मूजी बीमारी, खतरनाक बीमारी, डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, मूजी बीमारी या खतरनाक बीमारी। So this is the vocabulary for this segment. Now I am going to interpret it. आपकी रिपोर्ट्स का तज्जिया करने के बाद मैं तशखीस करता हूं कि ये गांठिया है जो कि जोड़ों की सूजन है और बदकिस्मती से ये एक मूजी बीमारी है, ठीक है। यहाँ इसका और क्या हो सकता है, एनालाइजिंग योर रिपोर्ट्स, आपकी रिपोर्ट्स का तज्जिया करने के बाद मैं ये तशखीस करता हूँ और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको गांठिया है जो कि जोड़ों की सूजन है और ये बदकिस्मती से एक मूजी बीमारी है। सो दैट्स ऑल। अगर यहाँ पे आपकी कोई इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है सो यू कैन टेक रिपीट, ठीक है। वो उसमें आपका -1 होगा, बट इट्स बेटर कि अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर दी है आप रिपीट ले लें और अपने नोट्स कंप्लीट करके क्विक और फ्लुएंट आंसर दें, ठीक है। और अगर आपके पास कोई ऐसा वोकैबुलरी वर्ड आता है जिसका आपको मीनिंग नहीं पता, फॉर एग्जांपल अब एनालाइजिंग का मतलब आपको नहीं पता उर्दू में तज्जिया करना होता है, तो क्या ऑप्शन आपके पास बचता है, किसी ने आपको डिक्शनरी या मीनिंग नहीं बताना, वहां पे आके आपने वही वर्ड एज इट इज यूज कर लेना है और अपनी फ्लुएंसी खराब नहीं करनी है, ठीक है। इट्स ऑल राइट, आप अपना वो वर्ड इंग्लिश का ही यूज करके आप अपना बाकी सारा वो उसको इंटरप्रेट कर दें, मीनिंग कन्वे कर दें, एंड यू कैन यूज दैट वर्ड। क्योंकि कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, किसी ने आपकी नहीं हेल्प करनी आके आपको वोकैबुलरी वर्ड नहीं बताना, ठीक है। तो उस पर ना ही कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है, सोचेंगे तो यू विल टेक पॉजेस जिससे आपकी फ्लुएंसी इफेक्ट होगी एंड ओवरऑल आपके नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होगी, ठीक है। तो आपकी रिपोर्ट्स का एनालाइज करने के बाद मैं ये तशखीस करता हूँ और यकीन से कह सकता हूँ कि आपको गांठिया है जो कि एक जोड़ों की सूजन है और बदकिस्मती से ये एक मूजी बीमारी है, ठीक है। यूज दैट वर्ड, बट अपने बाकी कॉन्फिडेंस और अपना वो फ्लुएंसी आपने खराब नहीं करनी। गिव यू आंसर कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली, दैट्स इनफ। आपका यही एक एम होना चाहिए अपना टेस्ट में, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। गाठिया, मैंने सुना है कि ये बीमारी नाकाबिले इलाज है।
अब मैं क्या करूं? जब दर्द होता है तो मेरा चलना भी दुश्वार हो जाता है। मैं यकीनी तौर पर अपनी नकल और हरकत से महरूम नहीं होना चाहता। यकीनी तौर पर अपनी नकलो हरकत से महरूम नहीं होना चाहता। ये लास्ट लाइन मैं इसलिए बोलती हूँ कि ये एक तो माइंड में रहती है, फिर बीप होती है और उसमें आपके पास टाइम होता है कि आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लें। सो आप कोशिश किया करें कि लास्ट लाइन जितना पॉसिबल मैक्सिमम आप नोट्स लिख सकते हैं लिख लें, इससे आपकी फ्लुएंसी बेटर होती है। ठीक है, जितना आपके पास रिटर्न में कुछ होगा उसको आपने बोलने में आपको उतना ही ज्यादा ईजी होगा और आप उतना ही करेक्टली उसको बोल पाएंगे। ठीक है, सो क्या नोट्स लिए मैंने? गांठिया, सुना है, नाकाबिले इलाज बीमारी, अब क्या करूं, जब दर्द होता है चलना भी दुश्वार हो जाता है। मैं सिर्फ चलना भी दुश्वार, हम जस्ट टेलिंग यू कि मैंने कुछ ना कुछ उस लाइन में से नोट्स लिए हैं जिसकी वजह से मुझे पूरी लाइन याद हो गई है। ठीक है, यकीनी तौर पर अपनी नकलो हरकत से महरूम नहीं होना चाहता। नकलो हरकत क्या होती है? मोबिलिटी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है इसमें मीनिंग, क्योंकि ये आपका बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन इज दैट वर्ड ऑफ व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें अब यहाँ पे उसकी अपनी नकलो हरकत की बात हो रही है, अपनी मोबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, और इसमें कोई वोकेबलरी वर्ड दुश्वार मुश्किल होता है, डिफिकल्ट, यकीनी तौर पर, डेफिनेटली और सर्टनली, और महरूम होना, लूज, खोना महरूम होना होता है ना, जिसका कि मैं इसको खो नहीं सकता, महरूम नहीं हो सकता। महरूम होता है लूज करना। या चलना भी दुश्वार, आई बेयरली वॉक, कि बहुत मुश्किल से मैं चलता हूँ। ठीक है, ओके, नाउ आई एम गोइंग टू इंटरप्रेट इट। आर्थराइटिस, I have heard that this disease is incurable. So what should I need to do now? I can barely walk when the pain is at intense. I certainly don't want to lose my mobility. So this is the answer for this segment. Okay, arthritis. I heard that that disease is incurable. So what should I need to do now? I can barely walk when the pain is intense, and I certainly don't want to lose my mobility. So that's the answer for this segment. Okay, all right. So yeah, next segment. Look, it is a common disease among older people. There isn't a complete cure for this disease, but it is manageable with medication and exercise. Manageable with medication and exercise. Older, okay. Look, common disease among older people, and there isn't mean is not complete, sorry, proper, I think proper cure. Okay, अब उसने बोला देर isn't proper cure, और अगर आप isn't की बजाय अगर आपने सुना है is, that is a major mistake. ओके, आप कह देंगे हाँ इसका मुकम्मल इलाज है, जबकि वो कह रहा है कि इसका मुकम्मल इलाज नहीं है। ठीक है, सुनने में तो सिर्फ इज और इज नॉट का डिफरेंस है, बट इट इज अ मेजर मिस्टेक, इट इज द डिस्टॉर्शन, इट इज द मिस प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और आपके 5-6 मार्क्स एकदम से कट सकते हैं। ठीक है, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, मेजर मिस्टेक्स को आपने कभी भी लाइट नहीं लेना। सो व्हाट आर द नोट्स? लुक, कॉमन डिजीज, older people, there isn't proper cure for this disease obviously, but it is manageable with medication and exercise. यहाँ पे अगर आपको लगता है आपने अपनी कोई इंफॉर्मेशन मिस कर दी है या आपको डाउट हो रहा है इस और इजंट में और आप इसको क्लियर करना चाहते हैं, यू शुड गो फॉर अ रिपीट। यहाँ पे -1 होगा क्योंकि ये अब हम सेकंड टाइम रिपीट लेंगे। ठीक है, एक दफा हमने पहले लिया था विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, हमने एक दफा फिर लिया था
-1 हो गया। अब अगर फिर अगेन लेंगे तो -1 अगेन हो जाएगा, बट इट इज बेटर कि आप अपना इज और इजंट का कंफ्यूजन दूर कर लें, बिकॉज अगर वो होगा तो दैट इज अ मेजर मिस्टेक। ठीक है, -6-7 मार्क्स इज बेटर कि आप -1 की तरफ चले जाएं, आप रिपीट ले लें। ठीक है, ओके, आई एम गोना आंसर इट। देखिए, ये बड़ी उम्र के लोगों में एक आम बीमारी है। इस बीमारी का एक कोई मुकम्मल इलाज नहीं है, लेकिन ये अद्वियात और वर्जिश के साथ ठीक की जा सकती है। ठीक है, अब मैनेजेबल का मतलब होता है इंतजाम करना। ठीक है, मुनज्जम, इसका इंतजाम किया जा सकता है। ठीक है, वी आर नॉट बाउंड कि हम वर्ड इंतजाम ही बोलें, वी आर बाउंड कि हम सही मीनिंग कन्वे करें। ठीक है, तो क्या मीनिंग है, इसको ठीक किया जा सकता है, ये बीमारी ठीक हो सकती है। किस तरह, वर्जिश और अद्वियात से। मेडिकेशन उसने बोला है ना, मेडिकेशन होता है अद्वियात, और एक्सरसाइज वर्जिश करना या मशक करना। वैसे मैनेजेबल का मतलब होता है मुनज्जम, इंतजाम करना। ठीक है, अब इसका इंतजाम किया जा सकता है। इंतजाम करना मतलब ये तो बेटर, इसको और इसका बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, टोटली डिस्टॉर्शन हो जाएगी। ठीक है, तो तभी इसको इंटरप्रिटेशन टेस्ट कहते हैं कि आपने मीनिंग, करेक्ट मीनिंग कन्वे करना है। ऑलराइट, सो देखिए, ये बड़ी उम्र के लोगों में एक आम बीमारी है। इस बीमारी का कोई मुकम्मल इलाज नहीं है, लेकिन ये अद्वियात और वर्जिश के साथ ठीक की जा सकती है। So this is it. ये इसका आंसर है। Okay, let's move to the next segment. ये अच्छा है कि अगर इस बीमारी का मश्क और अद्वियात से इंतजाम हो सकता है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और खुद की अच्छी तरह देखभाल करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। पूरी कोशिश करूंगा, खुद की देखभाल करूंगा और शुक्रिया, डॉक्टर का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, सो दीज आर द नोट्स विच आई हैव टेकन। ये अच्छा है कि अगर इस बीमारी का मशक और अद्वियात से इंतजाम हो सकता है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और खुद की अच्छी तरह देखभाल करूंगा। अब इसने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है इंतजाम हो सकता है, कि इसका वो दर्द का इलाज हो सकता है। ठीक है, अगर आप भी उसी वे में अगर करना चाहें जो कि लास्ट सेगमेंट में था, मैनेजेबल विद मेडिकेशन एंड एक्सरसाइज, के इसको इस दर्द का, इस बीमारी का मशक और अद्वियात से इंतजाम हो सकता है। ठीक है, इस बीमारी के दर्द का। ओके, अब इसमें कोई वोकैबुलरी वर्ड नहीं है इस सेगमेंट में, तो आई एम गोना डू इट। इट्स गुड if the disease is manageable by exercise and medicines. I'll try my best and take good care of myself. Thank you so much, doctor. Sorry, I did a mistake and I am gonna say it again. So what I will do, I want to correct myself. I will say sorry, I correct myself, and now I'm start again. It's good if the disease is manageable with exercise and medication. I'll try my best and take good care of myself. Thank you very much, doctor. ठीक है, तो दिस इज आंसर। अगर आपको लगता है कि कुछ पॉजेस लिए हैं या कुछ गलत हो गया है, क्योंकि मैंने आई ट्राई माई सेल्फ कुछ बोल दिया था जो कि रॉन्ग था, सो आई ट्राई माई बेस्ट एंड टेक गुड केयर ऑफ माई सेल्फ, एंड थैंक यू सो मच, डॉक्टर। Okay. All right, so next is Good. I will prescribe some medication that you have to take on time. Also, I will give you an exercise chart which you have to follow regularly. exercise chart, follow regularly. Okay, so what he said, good, prescribed some medication which you have to take regularly, which you have to take on time, and exercise chart which you have to follow regularly. ठीक है, एक्सरसाइज चार्ट, मशक का चार्ट या वर्जिश का चार्ट। ठीक है, मेडिकेशन, अद्वियात। ठीक है, अब उसने दो बातें की हैं।
दवाई उसने टाइम पे लेनी है और एक्सरसाइज का चार्ट बाकायदगी से फॉलो करना है। फॉलो करना होता है जिस पे अमल करना है रेगुलरली, बाकायदगी से या हर रोज। ओके, बहुत अच्छा। मैं आपको दुआओं का पर्चा लिख देता हूँ जिसका आपको वक्त पर एहतमाम करना है, और इसके अलावा आपको मशक का चार्ट दूंगा जिस पर आपने बाकायदगी से अमल करना है। और इफ यू वांट टू मेक इट वेरी सिंपल, बहुत अच्छा, मैं आपको दुआएं लिख देता हूँ जो कि आपने वक्त पर लेनी है। सॉरी, बहुत अच्छा, मैं आपको दुआएं लिख देता हूँ जो कि आपने वक्त पर लेनी है, और इसके अलावा मैं आपको मश्क का चार्ट बना देता हूँ जिस पर आपने बाकायदगी से अमल करना है। ठीक है। मेडिकेशन प्रिस्क्राइब होता है दवाओं का पर्चा, प्रिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं ना, प्रिस्क्रिप्शन दवाओं का पर्चा। मैं आपको दवाएं लिख देता हूँ या दवाओं का पर्चा दे देता हूँ जिसको आपने बाकायदगी से लेना है, और मैं आपको मशक का चार्ट बना देता हूँ जिस पर आपने बाकायदगी से अमल करना है। ओके, सो द डायलॉग एंड्स हियर। ठीक है, यहाँ पे ये मुकालमा खत्म होता है। मैं इस डायलॉग से रिलेटेड तमाम वोकैबुलरी एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ। कोई भी डायलॉग जब आप प्रैक्टिस किया करें उसका आप अपने नोटबुक के एंड पे या उस डायलॉग के साथ आप एक वोकैबुलरी लिस्ट बना लिया करें, सो दैट व्हेन यू हैव टू कम फॉर द रिवीजन आप उसके वोकैबुलरी लिस्ट आराम से उसको रिवाइज कर लें, और आपको पता हो कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्या वर्ड बोला गया था, ये क्या टॉपिक था इस डायलॉग का, और इसमें किस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड बोला गया था। ठीक है। सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये इनके वर्ड्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। सुबह बखैर, दोपहर बखैर, शाम बखैर, गुड नाइट, शबा बखैर। ओके, राइट नी, दायां घुटना, कंप्लेन करना, शिकायत करना, बदतर होते जाना, वर्स्ट। ठीक है। इसके अलावा और क्या था, बिखरे हुए हैं, स्केटर्ड और डिसऑर्डर्ड। रिपोर्ट्स, आप रिपोर्ट्स ही बोलें क्योंकि वो भी उर्दू में रिपोर्ट्स ही बोल रहा है। ठीक है, उर्दू स्पीकर इज आल्सो यूजिंग द वर्ड रिपोर्ट्स, नताइज नहीं बोल रहा। ठीक है। एंड कार्टिलेज, नरम हड्डी, डैमेज, नुकसान होना या जख्मी होना, इन्फ्लेमेशन, सूजन, लेटेस्ट रिपोर्ट, ताज़ा तरीन रिपोर्ट या जब सबसे आखिरी रिपोर्ट है, ये भी बोल सकते हैं आप। सिम्टम्स, अलामात, सख्ती, स्टिफनेस होता है, एंड सूजन, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग, नाकाबिले बर्दाश्त दर्द, अनबियरेबल पेन, एनालाइजिंग, तज्जिया करना, डायग्नोस, तशखीस करना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आर्थराइटिस, गांठिया, क्रोनिक डिजीज, मूजी बीमारी, नाकाबिले इलाज, इनक्योरेबल, चलना भी दुश्वार हो जाता है, आई एम बेयरली एबल टू वॉक, यकीनी तौर पर, सर्टनली, नकलो हरकत, मोबिलिटी, मैनेजेबल, इसका इंतजाम किया जा सकता है या इसको ठीक किया जा सकता है, मुनज़्ज़म किया जा सकता है। ठीक है, ये सब मैनेजेबल की मीनिंग है। मेडिकेशन, अद्वियात, एंड एक्सरसाइज, मश्क या वर्जिश। मेडिकेशन, अद्वियात, एक्सरसाइज, वर्जिश। प्रिस्क्राइब, लिख देना, मैं आपको दुआएं लिख देता हूँ। अगर प्रिस्क्रिप्शन का वर्ड है तो दुआओं का पर्चा। रेगुलरली, बाकायदगी से फॉलो, अमल करना है, बाकायदगी से अमल करना है या इसको हर रोज करना है। एंड दैट्स ऑल, ये सब वोकैबुलरी है इस डायलॉग की। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, और आपने इसको समझ भी लिया होगा।
sorry, and the one more thing I want to say, fluency is very important. आपके dialogues और उसके जो नोट्स हैं, प्लीज टेक इट इन दैट मैनर कि आपकी फ्लुएंसी इफेक्ट ना हो. जितने आप अच्छे नोट्स लेंगे उतनी ही आपकी फ्लुएंसी अच्छी होगी, ठीक है. और ये सब प्रैक्टिस से आता है. प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस टेस्ट को फॉर ग्रांटेड मत लें कि ये पीटी से मच इजियर है तो हमें इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए. इट इज एज इम्पोर्टेंट एज पीटी. आपको इसके भी 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है. देन अगेन इफ यू हैव एनी इशू, कोई भी डायलॉग या इसके पैटर्न या नाटी उर्दू टेस्ट से रिलेटेड कोई भी इशू, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन कम इन द क्लास, जो कि हर सैटरडे को 11 से 1 हमारी होती है. हर सैटरडे 11 से 1 नाटी उर्दू क्लास का टाइम है. यू कैन कम इन द क्लास, यू कैन ज्वाइन मी, आई कैन मेक प्रैक्टिस विद यू. आप आए, मेरी बजाय आप डायलॉग्स करें, एंड आई विल करेक्ट यू, आई विल एनालाइज यू, आई विल मार्क यू. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आप किस लेवल पे खड़े हैं और आपको कितनी प्रिपरेशन की और ज़रूरत है, ठीक है. ऑलराइट गाइस, अब हमारा क्लास का टाइम यहाँ पे फिनिश हो रहा है, बट बिफोर लिविंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडिंग एट CECA फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर आपका वीजा इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी इशू है, आप बिला झिझक, without any hesitation, come at CECA or you can call us, you can contact us through email. Your queries will be replied immediately or as soon as possible. So क्या हमारी services हैं? If you need any visa extension और अगर आपका student visa expire हो रहा है, if you want to extend that, you can come at CECA free of cost. आपका visa extension डाली जाएगी. आपको free cheapest professional year options बताए जाएंगे, professional cheapest health covers for overseas students and visitors, and free PT and IELTS classes if you are the tutor of NATI classes, and free NATI classes for everyone, I think, in 4 languages, which are English, which are Hindi, Punjabi, Nepali, and of course Urdu. एंड इसके अलावा अगर आप कैनेडियन इमिग्रेशन के बारे में सोच रहे हैं तो यू कैन कम एंड योर प्रोफाइल विल बी असेस्ड फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको चीपेस्ट PR पाथवेज बताए जाएंगे. PR अगर आपको अपना कोर्स चेंज करना है, चीपेस्ट कॉलेजेस ऑप्शंस यू कैन बी प्रोवाइडेड विद. एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, यू विल बी गिवन द फ्री कंसल्टेशन एट CECA. सो प्लीज कम and contact us through email, through phone, or you can physically visit our offices. So I hope you will get the best answers or best consultations here. All right, guys. So this is all about our services at CECA, and this is today जो हमने एक health related टेस्ट किया है, डायलॉग किया है, ठीक है. सो यू कम टू नो दैट दिस इज द इशू व्हिच कुड बी हैपन एट ऑस्ट्रेलिया. कोई भी उर्दू स्पीकर हो सकता है हु इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश और उसको डॉक्टर के पास जाना है, सो ही नीड एन इंटरप्रेटर. तो उनकी क्या कन्वर्सेशन हो सकती है, ठीक है. डेली रियल लाइफ इश्यूज ही डायलॉग्स की फॉर्म में आते हैं. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि कोई ऐसा कोई डायलॉग आ जाए जिसको आपको पता ही नहीं है कि आउट ऑफ वर्ल्ड ही आ गया. ऐसा नहीं होता. ऑस्ट्रेलियन इश्यूज, ऑस्ट्रेलिया में रहने वालों से रिलेटेड इश्यूज ही आएंगे और वही आपको करने होंगे, ठीक है. सो ऑलराइट गाइस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड पीपल अराउंड यू, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट प्रिपरेशन. अल्लाह हाफिज.